Hello students, welcome to SST class. Today we will continue the same chapter of history, lesson 2 from trade to territory. In the earlier video we studied about the claim of paramountcy. When we talk of claim of paramountcy, the meaning of paramountcy is supreme power. How East India Company or company became the supreme power, or they thought they have more power than Indian states. And when Rani Chennamma of Kittur raised voice against British resistance movement, she was arrested in 1824 and died in prison in 1829. Then we studied about the doctrine of lapse. When we talk about the doctrine of lapse, it was devised by Lord Dalhousie. According to this doctrine of lapse, if any ruler died without a male heir, then his property or her property, or we can say her territory, became the part of company. And so the company acquired Jhansi, we can say Nagpur, Udaipur, on the basis of the policy of doctrine of lapse. Now today we are going to study about the setting up of a new administration. Now Warren Hastings, Governor General from 1773 till 1785. During Warren Hastings' Governor Generalship, the company acquired or expanded his territory. The British territories were broadly divided into administrative units. Under Warren Hastings, जो British की territories थी, they were divided into administrative units, और इन administrative units को बोला जाता था presidencies, जिससे जो ब्रिटिशर्स की टेरिटरीज हैं, जो कंपनी की टेरिटरीज हैं, उनका वर्क प्रॉपरली हो सके, इसलिए उन यूनिट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को किसमें डिवाइड कर दिया था? प्रेसिडेंसीज. और देयर वर 3 मेन प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, which were ruled by a governor, and above the governor was Governor General who looked after it. Now again, British territories were broadly divided into administrative units, and these administrative units were called presidency. There were 3 main presidency, Bengal, Madras and Bombay, which were ruled by governor, and above governor was Governor General. From 1772, a new system of justice was established. Under Warren Hastings, a new system of justice was established. What was that? Each district was to have 2 courts. Each district which will have 2 courts. हर डिस्ट्रिक्ट के पास 2 कोर्ट्स होंगे. वो कौन से 2 कोर्ट्स होंगे? पहला होगा क्रिमिनल कोर्ट, इसे फौजदारी अदालत भी बोला जाता है. सेकंड सिविल कोर्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज और कॉल्ड एज दीवानी अदालत. अगेन from 1772, a new system of justice was established, that each district will have 2 courts. Now, what were these 2 courts? Criminal court or फौजदारी अदालत, civil court or दीवानी अदालत. Clear? Now, when these courts were established, Maulvis and Hindu Pandits were told to interpret Indian laws. उन्हें बोला गया था मौलवीज को और पंडित को, जो इंडियन लॉ है उसे इंटरप्रेट करें, उसे समझें और उसे एक्सप्लेन करें. किसके लिए? यूरोपियन जजेस के लिए. पर जो ये पंडित से और मौलवीज थे, हर किसी का अपना अपना इंटरप्रिटेशन था. वाई देयर इंटरप्रिटेशन वॉज डिफरेंट? क्योंकि ऑफ ड्यू टू द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र. फिर उसके बाद जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सबने अपना अपना इंटरप्रिटेशन, अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया, अपना अपना नजरिया, व्यू दिया, तो उन कंपनी ने बोला कि उन्होंने एक 11 पंडित्स की बोला गया कि एक
हिंदू लॉ का डाइजेस्ट बनाया जाए और ऐसी मौलवीज को भी बोला गया जिससे वो यूरोपियन जजेस को इंडियन लॉ को समझने में आसानी हो. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 a new Supreme Court was established. Again, under the regulating of the 1773, a new Supreme Court was established. Now, collector was important figure in Indian district. जो Indian district था, collector was an important figure, or we can say played an important role. As from name itself, what was the job of collector? The job of collector was to collect revenue and tax, and through this revenue or tax, he used to maintain law and order with the help of judges and police officer. Now again, Warren Hastings, 1773 to 1785, Governor General. British territories were broadly divided into administrative units which were known as presidency, and there were three main presidencies: Bengal, Madras and Bombay. And why these presidency were made? So that the work or administration was run smoothly, and these presidency were looked after by governor, and above them was Governor General. Now in 1772 a new system of justice was established, and what was that? That each district will have two courts. One was criminal court and other was civil court. Under the regulating act of 1773, a Supreme Court was established, and collector was an important figure or played an important role in Indian district, whose job was to collect revenue and tax so that he could or she could maintain law and order in his district with the help of judges and police officer. Our next topic is the company army. Now we can say whosoever is, जिसको भी अगर अपनी टेरिटरीज का एरिया बढ़ाना है तो टू थिंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वन थिंग इज टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग एंड टू मेक हिज आर्मी स्ट्रॉन्ग. सो ब्रिटिशर adopted or company adopted the same thing. They strengthened their military force so that they can expand or make more stronger control over India. Company power rested on its military strength. The East India Company power किस पे डिपेंड थी? On the strength of their military. The Mughal army was composed of cavalry and infantry. जो मुगल आर्मी थी उस समय वो किस चीज से बनी हुई थी? उनके पास कैवलरी सोल्जर्स थे और इन्फेंट्री. व्हेन वी टॉक अबाउट कैवलरी, द मीनिंग ऑफ कैवलरी इज घुड़सवार. वो सोल्जर जो घोड़े में सवार होते हैं तब वो फाइट करते हैं. इन्फेंट्री पैदल, जो पैदल चलते हैं सोल्जर्स. और दे वर ट्रेन्ड इन आर्चरी एंड स्वॉर्ड. अगेन द मुगल आर्मी किस चीज से बनी हुई थी? उनके पास सोल्जर्स थे कैवलरी और इन्फेंट्री. व्हेन वी टॉक अबाउट कैवलरी, द मीनिंग ऑफ कैवलरी इज घुड़सवार, द सोल्जर विच राइड्स हॉर्स, और तब फाइट करते हैं. इन्फेंट्री पैदल चलने वाले सोल्जर्स, और वो ट्रेन थे किसमें? इन आर्चरी एंड स्वॉर्ड. और फिर जब द मुगल सक्सेसर, जो मुगल सक्सेसर स्टेट्स थे अवध और बनारस, they started recruiting peasants in their army. जो अवध और बनारस था वो क्या करने लगे? अपनी आर्मी में वो पीजेंट्स सोल्जर्स रखने लगे, उन्हें ट्रेन करने लगे. जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा, सेम थिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी एडोप्टेड. द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो रिक्रूटेड, माने उन्होंने भी उन्हें अपने पीजेंट्स को अपनी आर्मी में एज ए ट्रेन्ड सोल्जर्स रखने लगे. द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो रिक्रूटेड पीजेंट्स इन देयर आर्मी एंड ट्रेन देम एज सोल्जर्स. और उन सोल्जर्स को वो बोलते थे सिपाही आर्मी. क्यों सिपाही? ये वर्ड, जो सिपाही वर्ड है, ये लिया गया है हिंदी वर्ड सिपाही से. तो जब ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स सिपाही वर्ड्स को प्रोनाउंस करते थे तो वो कैसा लगता था? सिपाही. सो द ईस्ट इंडिया कंपनी जो पीजेंट्स को रिक्रूट करा और उन्हें ट्रेनिंग दी एज ए सोल्जर्स,
उनको क्या बोला गया, सिपॉय आर्मी। जो सिपॉय वर्ड है इज टेकन फ्रॉम द वर्ड सिपाही, हिंदी वर्ड सिपाही से, सिपाही का जो हिंदी मीनिंग होता है सोल्जर। वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s, फ्रॉम 1820s द वॉरफेयर, जो लड़ाई का तरीका था, युद्ध का तरीका था, इट स्टार्टेड चेंजिंग। कैवलरी रिक्रूटमेंट्स डिक्लाइन, जो कैवलरी थे, घुड़सवार थी, उसकी रिक्वायरमेंट कम होने लगी। और क्यों कैवलरी की रिक्वायरमेंट कम होने लगी? एज ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, where soldier use muskets and matchlocks. Musket and matchlocks are guns. Clear? Musket is a heavy gun and matchlock ये भी एक गन है जिसमें पाउडर भरा जाता है और फिर उस पाउडर के माचिस से जलाया जाता है। जो कैवलरी थी उसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होने लगी और उसका रीजन क्या था? जो ब्रिटिश एम्पायर था वो बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में जब फाइट कर रहा था वहां सोल्जर्स के पास क्या थे, कैसी गन्स थी? मस्कट और मैचलॉक। और मस्कट और मैचलॉक को यूज करना घुड़सवार सोल्जर्स के लिए इजी नहीं था, उनके लिए पैदल सोल्जर्स या इन्फेंट्री सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट थी। इन अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश स्टार्टेड यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग। अपनी आर्मी, अपने सोल्जर्स को और ट्रेंड या और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए The Britishers started European style of training, drill और discipline लाने लगे जिससे उनकी मिलिट्री फोर्स और स्ट्रांग हो सके और वो अपना कंट्रोल इंडिया पे और अच्छा कर सके। Now the company army, company power rested on its military strength. The Mughal army was composed of cavalry and infantry. Cavalry means घुड़सवार, soldiers जो घोड़े में सवार रहते हैं और तब फाइट करते हैं। इन्फेंट्री पैदल, दोस्त हु जो पैदल चलते हैं और तब फाइट करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो रिक्रूटेड पीजेंट्स इन द आर्मी एंड ट्रेन देम एज सोल्जर्स नोन एज सिपाही आर्मी एंड द वर्ड सिपाही इज टेकन फ्रॉम द वर्ड सिपाही, जिसका मीनिंग है सोल्जर हिंदी में। वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s, कैवलरी की रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट कम होगी और उसका रीजन क्या था? एज ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान, जहां पे सोल्जर्स क्या यूज कर रहे थे? मस्कट्स एंड मैचलॉक विच आर द हैवी गन्स। सो इन अर्ली 19th century द ब्रिटिश स्टार्टेड यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, ब्रिंगिंग मोर डिसिप्लिन एंड ड्रिल इन देयर soldiers.